I welcome you all in today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start our session with the recitation of Holy Quran. We all discussed about the session of types of hydropower plant, and in last week was discussed about the micro hydropower plants, which are up to 300 kilowatt of capacity in a small unit. After micro hydropower plant, a small hydropower plant can also be installed by the capacity 300 kilowatt to 1 megawatt. Further, the capacity above 1 megawatt can also be installed for a city that would be mini hydropower plant. And further, before after that, the capacity of 15 megawatt to 100 megawatt can be installed, and after onwards the capacity which is the largest amount of power plant, which is the capacity more than 100 megawatt, and up to that the pico hydropower plant up to 10 kilowatt of megawatt. The further this one is the capacity that would be 10 gigawatt pico one. Pico would be the least one, I think. Okay. So maximum capacity of large hydropower plant would be 100 megawatt. But China crossed the border. China crossed the limit and it produced enormous amount of power. Further, the concept of run of the river, that ROR concept, what is that? So we are discuss the concept, the facility that channels flow water from a river through a canal or penstoke to spin turbine. Typically, a run-of-river project will have little or no storage facility. So those kind of system which have the no uh, flow of no reservation of water, they cannot reserve the water as a reservoir. So we parallelly provide the supply of water in a canal system by this way, and by flow the water by penstoke mechanism provided to the this run of the river way produce electricity, and again water is included in the same Indus river of the river which flow continuously, which is starting from this way to this way. So this flow of water can also be inserted in water again, and the concept we call a run of the river. Run of the river provides continuous supply of electricity base load with the with some flexibility of operation for daily fluctuations in demand through water flow that is regulated by the facility. So the run of the river hydroelectric power station, major examples are Bolimonte Dam, and further in Brazil, and Shape Joseph dams in the kind of, but categorically run of the river power plant are the essential kind of prospect produce electricity, and there is a no need of reservoir in this system. And India have also the kind of Satluj, Jel,
Videsh, Nigmet, Nigam Limited, Satluj River, Shimla in India, that is 1500 megawatt of dam which is on run of the river. उनके ये दरियाई निज़ाम पे बना हुआ है. एंड बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर इन इंडिया में बना हुआ है जो कि 900 megawatt having the kind of capacity for the further the run of the river hydropower plant which is are in Pakistan is Ghazi Brodra hydropower plant on river Indus जो कि हमारे दरिया सिंध में बना हुआ है and having the value 1450 of megawatt. Kohala hydropower project Jhelum River Muzaffarabad Pakistan which is 1100 megawatt and Neelam Jhelum hydropower plant in Jhelum River Muzaffarabad Azad Jammu Kashmir which is having the value 969 of megawatt. Patent hydropower plant in Kundhar River, Pakistan. So the biggest value of run of the river based hydropower plant are Ghazi Brodra Dam. So we are talking about the Ghazi Brodra statistics. Ghazi Brodra hydropower project is a 1450 megawatt run of the river hydropower connected to the Indus River. दरिया सिंध से ये इल्हाक शुदा है with 10 kilometer, that means 6.2 of miles west of Attock in Punjab, Pakistan. Construction of the project that began in 1995 consists of 5 generators, each with a maximum power generation capacity 290 megawatt. Inauguration of plant on 19 August 2003 by the President General Pervez Musharraf and it cost having the US dollar 2.1 million with funding from Pakistan's Water and Power Development Authority (PAVDA), the World Bank, Asian Development Bank, Japan Bank of International Cooperation, and Grandest Ford Britain to European Investment Bank and Islamic Development Bank provide the fund for utilization to make the kind of dam. So in Pakistan, we have two major power generation projects, Tarbela Dam and Mangla Dam as well. They are also producing electricity in enormous kind of unit, which do not produce adequate electricity for entire country. It cannot feed the whole country, but they are played their vital role in the production of electricity to the WAPDA in the national grid as well. In the absence of any other mega dam project, it was planned to utilize the downstream flow of the Indus from Ghazi to Baroda and produce electricity at Baroda by the fast current of downstream water. Downstream means जो ऊंचाई से बहता हुआ नीचे की streams नीचे के इलाकों तक जाता है उसे out upstream to downstream flow of water level कहा जाता है. Ghazi Baroda hydropower project hold the record for the biggest line channel in the world as well because it consists on the run of the river mechanism. So this is the way to produce electricity. This is our Indus Dam. ये sorry Indus Dam Indus River. तो ये आपका तरबेला डैम है ये पूरा. तरबेला डैम से ये यहाँ से होता हुआ ये आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तरबेला डैम के बाद ये यहाँ से आप एक कैनाल्स को निकालते हैं और यहाँ से लेके आ रहे होते हैं और गाजी बरोदरा के ऊपर लाके इसको प्रोड्यूस कर देते हैं. गाजी बरोदरा उस इलाके का नाम है. अच्छा, जो इंडस रिवर है वो फर्दर यहाँ से तरबेला डैम से होता हुआ तो आगे जा ही रहा होता है, ठीक है. तो तरबेला डैम के जरिए से जो इंडस रिवर बहता हुआ आ रहा है वो यहाँ पे आके फर्दर मिल ही जाना है ऐसे यहाँ पे. तो आपने एक अलग कनाल लेकर और उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी गाजी बरोदरा डैम के जरिए और इंडस रिवर वापस पानी दोबारा दरिया में शामिल हो गया है. क्या ये बात यहाँ तक समझ आ जाती है सबको? जी सर. जी सर. अच्छा, गाजी बरोदरा अब वो जो छोटा सा दिखाया था ना ए, ये अब ये चीज यहाँ दिखाई जा रही है तो ये है वो गाजी बरोदरा डैम.
जो कि 290 मेगावाट की 5 टरबाइन लगी हुई हैं डैम के जो यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट्स हैं। तो 1450 मेगावाट ईच ऑफ वन प्रोड्यूस कर रही है। एग्जिस्टिंग टोटल वैल्यू हमें मेगावाट में प्रोड्यूस करता है। और गाजी बरोदरा रन ऑफ द रिवर के ऊपर एक बेहतरीन सीमेंट कंक्रीट बेस एक डैम बना हुआ है जो कि एक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपना एक बेहतरीन रोल पैदा कर रहा है और कंसिस्टेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है जो कि रन ऑफ द रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये एक बड़ी अच्छा, अचीवमेंट है वापडा की भी। जी, if you have any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and you resolve your queries if you have in your mind. Further, we again continue the session. सर ये एक बात बताइएगा, जी, ये पाकिस्तान में जितनी भी सर ये जो मेगावाट है सर, ये 11 केवी पे होती है कि 500 केवी पे? यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जरूरत 28,000 मेगावाट है, जी। तो 28,000 मेगावाट की जो कैलकुलेशन है वो 11 केवी पे बनती है क्या सर? नहीं, ये ऐसा नहीं है। असल में आप जो ये जनरेटिंग यूनिट्स देख रहे हैं ना, जो जब इनको वाटर की सोर्स मिलती है तो ये टरबाइन कपल होती है जनरेटर से। तो जनरेटर्स के जो यूनिट लगे हैं ना, ये लगे हुए जैसे ये 2 वाला यूनिट है। तो ये जनरेटर चलता है 290 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। लेकिन ये वोल्टेज कितने पैदा करेगा और एम्पेयर कितने पैदा करेगा ये दो अलग बात है। तो जो एम्पेयर पैदा करता है वो इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के मुताबिक होता है। ठीक है, एम्पेयर को एक तरफ रख लें आप। और आप ये वोल्टेज जो होते हैं वो 11 केवी होते हैं। तो जनरेटर की प्रोडक्शन जिस वोल्टेज पे होती है प्रोड्यूस करने की, वो 11 केवी होते हैं। एम्पेयर उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 11 होता है। तो अगर आपको 290 से वो निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू वाई। तो आप पावर को डिवाइड करते हैं 11 से, 290 को 11 से डिवाइड करें, सॉरी 290 मेगावाट को। तो हम कर लेते हैं ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेटर पे करें। 290 मेगा के होते हैं जी 3 यूनिट, 6 0, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 11 केवी। तो 11 केवी कितना होता है, 3 0, 1 2 3। तो जनाब जो इसके एम्पेयर बन रहे हैं वो है 26.363 किलो। दैट मीन्स 26,000, 26,000 एम्पेयर बन रहे हैं एक यूनिट के। दैट इज मी 26.36 किलो ऑफ एम्पेयर्स। तो 26,000 एम्पेयर एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एम्पेयर का। और वोल्टेज 11 केवी में होता है। अब ये जो आप पावर देख रहे हैं ना, वोल्टेज और एम्पेयर, इनके मल्टीप्लिकेशन से बनता है पावर। ये मैंने 290 बना दिया। आप अब 26,000 को 26.36 एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं 11,000 से, तो आपको मिल जाएगा 290 मेगावाट। ठीक है भाई, इससे पावर ड्राइव हो गई। तो इतनी कैपेसिटी का पावर यूनिट है आपके पास, जनरेटिंग यूनिट। एक जनरेटर है, इस तरह के 5 लगे हुए हैं। तो जब ये पांचों के पांचों और फर्दर ये एक्सटेंड भी होते हैं, मतलब एक और यूनिट हो गया, एक और यूनिट हो गया, एक और यूनिट हो गया, तो इनकी एक्सटेंशन से फिर इनकी पैदावारी लागत बढ़ रही होती है क्योंकि इनकी डी ग्रेड वैल्यू होती है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पुराने हो जाते हैं, बंद होते जाते हैं। तो उन्हें एक्सटेंशन लाजमी करनी होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ यूनिट बंद होते जाएंगे, तो इसलिए आगे उन्हें लगाने पड़ेंगे नए। इनकी मेंटेनेंस और फर्दर चीजें होती हैं। अच्छा जी, तो जनरेशन जो होती है वो आपकी 11 केवी में होती है, लेकिन इसके एम्पेयर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, 26,000 एम्पेयर हो रहे हैं। तो इन वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई करें, आपको पावर मिल जाएगी। तो इतनी पावर के 5 जनरेटर यूनिट लगे हैं, इन सबको फिर आप एडअप करते हैं तो 1450 मेगावाट का एक यूनिट पूरे डैम का बन रहा है। तो ये जो कैपेसिटी 1450 मेगावाट की है वो प्रोवाइड की जाती है नेशनल ग्रिड को। और इस तरीके से तरबेला डैम, मंगला डैम, वार्सिक डैम और भी बहुत सारे जो डैम है हमारे, वार्सिक डैम और कौन सा होगा, कोहाला डैम, नीलम झेलम डैम और पेटेड डैम, कोहाला डैम, के सारे डैम मिलकर अपनी कैपेसिटी जो कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जनरेटर में पैदा करते हैं
नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई और फर्दर सवाल तो पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। क्लियर है सर। तो इस तरीके से नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और फिर कैपेसिटी के मुताबिक सूबे के मुताबिक उसकी आबादी उसके रिसोर्सेज के मुताबिक डिवाइड होती है, और लोड शेडिंग ऑफ लोड भी इस तरह ही आबादी के लिहाज से डिवाइड होती है। फर्दर गाजी ब्रोदरा वो जो आके दोबारा इंडस रिवर, ये जो आपका चल रहा है ना दरियाए सिंध, वापस ये जो दोबारा बता दो, ये जो यहाँ से तरवेला डैम से होता हुआ, या तरवेला डैम पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, आपने केनाल एक यहाँ से खींच दी और उसके बाद गाजी ब्रोदर डैम बना दिया, और उससे रिमेनिंग जो निकलेगा ना ये हिस्सा मैप पे ये हाईलाइट करके दिखाया है, ये है वो। यहाँ से दोबारा से पेनिस्टोक आपका डैम और 5 यूनिट पैदा करेंगे, और यहाँ से होता हुआ पानी दोबारा इंडस रिवर में, जो कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आके मिल जाएगा। ठीक है, केपीके में जाता है, उसके बाद इंडस रिवर आपका सेम चल रहा है, तो आपने लाके शामिल कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि समथिंग आपने उसी पानी को वापस उसमें शामिल कर दिया और पानी का नुकसान भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो ये खूबी होती है। इसी तरीके से आप मल्टीपल वेज में कैनाल सिस्टम के जरिए से डैम्स बना सकते हैं रन ऑफ द रिवर को। यहाँ पे इस तरह देखें, एक और अगर आप डाउन स्ट्रीमिंग वेज में यहाँ से खींचते हुए दे दें तो ये भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप ड्राइव कर सकते हैं एक रन ऑफ द रिवर के जरिए हाइड्रो पावर प्लांट। समझ रहे हैं ये चीज कैसे बन सकती है? जरा इसके ऊपर सोचें, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मल्टीपल डैम की सिस्टम बन सकते हैं। साउंड सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें आगे। वालेकुम अस्सलाम, आगे भी बोलने भाई। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई कंफर्म कर देगा भाई, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लियर आवाज है सर सर आपकी। आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है भाई, थोड़ा करीब होके बोल रहा हूँ मैं। बहरहाल मैं ये बता रहा था इसमें कि अगर आपको एक और डैम क्रिएट करना है तो आप कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, ये मैंने पूछा था, तो कोई बताएगा? जी ये सर ये तो तरबेला से एक और किनाल निकाल के, जी, एक और किनाल निकालेंगे सर, एक और कनाल निकाल के हम तो हो यहाँ पे, सकता है आपने जैसे बताया। जी यहाँ पे बन सकता है इसके इन इन बिटवीन द गैप। लेकिन सारा मसला ये कि भाई यहाँ आबादी भी तो हो सकती है, इन सबको डिस्प्लेस करना पड़ जाएगा आपको। ये बसे ही इसलिए हैं कि दरिया बह रहा है यहाँ पे, ये घर पे पानी ले लें हम, तो वो होता है कब्जा माफिया जो होते हैं, मतलब ये पानी मुफ्त का मिल रहा है यहाँ पे, और ठंडा पानी होता है, 24 घंटे का पानी है, पानी का मसला ही कोई नहीं है। और पानी की अहमियत को जो है ना सही समझता है कि जो ये हमारे पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, जहाँ जिनको ताज़ा पानी मिलता है, पंजाब के लोग हुए या जो करीब रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी अहमियत का, उनको कराची का पानी ला के पिलाते हैं आप, 2 दिन में हैजा हो जाएगा उनको। ये हम लोग ही हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो असल चीज ये है कि पानी की क्वालिटी यहाँ बहुत बेहतर है, तो ये लोग यहाँ पे प्लेस कर जाते हैं, तो आप इतनी आसानी से ना इनको यहाँ से हटा नहीं सकते। या और वो ये इतना आसान भी नहीं है कि आपने बोल दिया और अगले दिन जो है वो डैम मिल जाएगा। इसके लिए साल लगते हैं। अभी देखें कुछ 5 साल लगते हैं एक डैम बनने में, 5 साल कम से कम भी, और ज्यादा से ज्यादा जो है 8 साल लग जाता है, अगर आपके फंड सही मिले हुए हों और सारी चीजें। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को जो आबादी इनकी हो यहाँ पे प्लेस करना, उनको सही मुकाम देना, और उनके अपने नखरे होते हैं कि भाई पानी ले रहा हूँ मैं और सही मिल रहा है, लोकेशन, उसके पैसे वगैरह वगैरह जिस चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा काम है इसमें ना। Hopefully, all the things have been clear till now. If you have any kind of question, query, difficulty, please feel free to discuss. Further, I will continue the session. Further, the advantage of cleaner power, fewer greenhouse gases. अच्छा, इनके फायदे क्या हैं डैम लगाने के? Like all hydroelectric power, run of the river hydro harness the natural potential energy of water.
रन ऑफ द रिवर के जरिए जो पानी मिलता है उसकी नेचुरल पोटेंशियल एनर्जी एक होती है, क्योंकि वो स्टोर हुआ हुआ पानी नहीं होता। अब देखें, जो डैम में पानी रखा होगा ना, वो 1 महीने पुराना भी हो सकता है, 1 हफ्ते पुराना भी होगा। क्या वो पोटेंशियल जो एक फ्रेश वाटर का होगा, डैम में रखे हुए या रिजर्वायर में रखे हुए पानी का वो पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं होगा। पोटेंशियल मतलब द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्योंकि बहते हुए पानी के अंदर क्वालिटी ऑफ वाटर उसकी लगाना ने उसमें रखी है। और जो रुका हुआ पानी होता है वो पानी खराब हो जाता है, ठीक। और मछलियां ज्यादा बेहतर उन पानी में भी रहती हैं जो कि इंडस रिवर बहता हुआ पानी होता है, दरियासन का पानी है। डैम के अंदर जो मछली होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। आइदर डैम की मछली भी लोग लेते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह मैं चश्मा पावर प्लांट में गया था, वो डैम की मछलियां पकड़ लेते भाई। इतनी बड़ी मछली जो मैंने बहुत कम देखी है। यहाँ फिशरीज में आप जाएं तो यहाँ मिल जाएंगी आपको, तो 3-3 दिन के बाद लोग लेके आते हैं। लेकिन वहाँ डैम की भाई क्या जबरदस्त मछलियाँ थी, फंड थे। तो अब ये बार मछली क्वालिटी की बात करना सही नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम। तो फर्दर हम बात कर रहे थे कि वो जो फायदे होते हैं डैम लगाने के, उसमें पोटेंशियल ऑफ वाटर होता है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ बर्न कोल। आप इसमें कोयला जलाने का सिलसिला नहीं है, गैस जलाने का सिलसिला नहीं है, और अपनी नेचुरल गैस जलाने का सिलसिला इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सब कार्बन एमिशन तो होगा ही नहीं, इसमें पोल्यूशन तो इसमें इन्वायरमेंटल होगा ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है इसका। So to generate electricity needed to consumers and industry as well. Moreover, run of the river hydroelectric plant do not require the formation of a reservoir. इसको रिजर्वायर कहते हैं डैम को, जहाँ पानी स्टोर करते हैं। अब रन ऑफ द रिवर जो बहता हुआ दरिया जैसे मैंने आपको दिखाया, उसमें सिर्फ एक टरबाइन आपको लगानी है और पेन स्ट्रोक बहता हुआ पानी की लाइन लेनी है कैनाल सिस्टम से। तो स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली पानी को लेते हैं और बस इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के ये फायदे हैं इसमें। लेस फ्लडिंग रिजर्वायर्स, इसमें वो अपना जो रन ऑफ द रिवर से फायदा ये होता है कि आपकी वो जो फ्लडिंग होती है वो नहीं होगी इसमें। और अडेप्टेबल, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी आपकी बहुत कम लगेगी, क्योंकि रिजर्वायर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। आपको पूरा सीमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर रिजर्वायर का बनाना पड़ेगा। जैसे ऐसे ही है कि एक पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप जो कि टैंक में रखा हुआ है। अब टैंक बनाने के लिए इर्द गिर्द आपको उसकी 4 दीवारी खड़ी करनी पड़ेगी, स्प्लिस्टर लगाना पड़ेगा, वो केमिकल वाला जो लगाते हैं वो, और नीरू लगाते हैं समथिंग, और उससे बिल्कुल एक मुकम्मल फॉर्मेशन बनाते हैं पूरे टैंक की, ताकि पानी रसे ना जब टैंक में आप स्टोर कर लें। तो डैम का भी यही मैकेनिज्म होता है कि पूरा सीमेंट कंक्रीट बेड स्ट्रक्चर होता है, और ये सेवरल किलोमीटर्स का डैम होता है जिसमें पानी स्टोर होता है। लेकिन जो रन ऑफ द रिवर का है उसमें कनाल सिस्टम जो आप लगाते हैं वो सिर्फ कनाल जो बहता हुआ पानी आपको मिलेगा, सिर्फ उसको ही आपने बेहतर रखना है। उसको आप सीमेंट बेड स्ट्रक्चर कर भी दें तो कोई उससे इतना कोई इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं लगानी। उसके बनिस्बत डैम में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। तो रन ऑफ द रिवर डैम के मुकाबले में कई गुना सस्ता भी है, और बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसका? अनफर्म जो पावर है वो आप उससे ले लेते हैं। अवेलेबिलिटी साइट्स आपको ये चूज करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जहाँ से आप वो गुजारते हैं अपना पिन स्टॉक यानी बहता हुआ पानी कैनाल सिस्टम का, वहां से आपने दरख्त खारे काटने पड़ जाते हैं, वहाँ आबादी है तो ख़त्म करनी पड़ जाती है, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं उसमें कि आपको वो सेफ वाटर प्रॉपर तरीके से मिले। तो ये एक डिसएडवांटेज के सेंस में भी आप इसे कह सकते हैं। फिर उसको पानी आपको कभी कभी जमा हुआ मिल रहा होता है ठंडे मौसम के अंदर, तो ये कुछ अनफेयर किस्म की सॉरी डिसएडवांटेज लेवल की चीज़ें भी आपको उस वक्त बेयर करनी पड़ती हैं। स्ट्रॉन्ग इम्पाउंडेड हाइड्रो पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो being in practice the most common type of hydroelectric power plant is an important facility. An impounded facility, typically a large hydropower system, uses a dam to store. Dam is like a reservoir. ये देख रहे हैं आप, ये होता है रिजर्वायर। अब इसमें बहता हुआ पानी नहीं आ रहा, इसमें झीलें, चश्मे, नहरों और दरियाओं का पानी लाके स्टोर करते हैं आप। इसमें से निकल के ही जाएगा इसमें से लेट से पानी, लेकिन इसमें आपको इतना स्टोर करना पड़ेगा, कई महीनों का पानी, कई हफ्तों का पानी। वो पानी जो है पुराना हो जाता है कुछ टाइम में, ऐसे पुराना नहीं होता समथिंग, लेकिन उससे डैम से फर्दर फिर, लेकिन वो पोटेंशियल पानी का इसमें नहीं रहता। और दूसरा, इसमें आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है इतनी बड़ी स्टोरेज एक टैंक बनाने में। समझ रहे हैं इस बात को?
सो वाटर इन रिजर्वायर रखना पड़ता है, ये पूरा रिजर्वायर है जिसको आप डैम कहते हैं. Water released from the reservoir flows through a turbine spinning it, which in turn activities are generated to produce electricity. The water may be released either to meet changing electricity needs to maintain a constant reservoir level. और reservoir का level एक consistent रखना पड़ता है, अभी पूरा भर के रखना पड़ेगा इसमें, आपको ये ध्यान में रखें पानी के सेंस में. इनसाइड द हाइड्रो पावर प्लांट अगर बात करें तो ये पूरा रिजर्वायर हो गया, ये हिस्से की बात हो रही है. ये फिर उसका डैम का वो हिस्सा जिससे आपके पानी के फर्दर फ्लो होगा. जनरेटर आपका यहाँ कनेक्ट करते हैं, नीचे उसके टरबाइन होती है जो कि जनरेटर से कपल होती है. ट्रांसफार्मर के बाद पावर हाउस होता है जिसमें ट्रांसफार्मर रखा होता है और स्टेप डाउन करके आप पावर लाइन ऑफ ट्रांसमिशन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अपने नेशनल ग्रिड को. फर्दर ये इनटेक ऑफ वाटर यहाँ से आप हासिल करते हैं. कंट्रोल गेट्स लगाए जाते हैं इसके, और पेन स्टॉक के जरिए, यानी ये ढलान होती है जिसको आप इंक्लाइन कहते हैं, यहाँ से बहता हुआ पानी आता है. टरबाइन के जरिए फर्दर यहाँ कनेक्ट होता है जो कि आपके फ्रेंसिस टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ग्रेविटी टरबाइन हो सकती है. ग्रेविटी तो शायद नहीं होगी, बट रिएक्शन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, फ्रेंसिस टरबाइन यूज करते हैं आप. उसके बाद आउटफ्लो होके यहाँ आउटपुट में आपको पानी मिलता है. उसके बाद दोबारा ये रिजर्वायर आप एक भर सकते हैं किसी दूसरे डैम के लिए, और अपना नहरी निज़ाम आप यहाँ से इरिगेशन सिस्टम पे निकाल सकते हैं. तो डैम का ये सबसे बड़ा मजीद एक फायदा है. मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो है वो थ्री गॉर्जेस डैम है जो कि टोटल कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है. ये मैं भी गलत हो गया, इसके अंदर 22,000 है. ये आपकी डेली यूज ऑफ रिक्वायरमेंट है पूरे कंट्री की. अभी जो पैदा कर रहे हैं आप, अब वो ये 22,000 है. 22,500 मेगावाट या 23,000 आपकी रिक्वायरमेंट है जो आप पैदा कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो 28,000 मेगावाट है. तो पूरे के पूरे कंट्री को ये इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है सिर्फ एक डैम ऑफ चाइना के थ्री गॉर्जेस के मुताबिक. तो 2009 में बना है. अच्छा जी, ब्राजील में बना हुआ है, वेनेजुएला में है, यूएसए में, पाकिस्तान में दो बड़े डैम है. अच्छा ये भी ना उसमें बने हैं, मार्शल लॉ में डैम, जो अपना आमरियत में कह सकते हैं आप, तरबेला डैम और मंगला डैम. फौजियों ने बनाया है डैम. जो तरबेला डैम है 3,478 मेगावाट का, सबसे बड़ा डैम है ये पाकिस्तान का. इतनी बड़े यूनिट का कोई, लेकिन ये रन ऑफ द रिवर पे नहीं है, रिजर्वायर बेस्ड डैम है. और एक मंगला डैम है जो कि 1,000 मेगावाट का. तो तरबेला डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान. फर्दर कोई सवाल किसी के ध्यान में हो, if you have any kind of question, query, difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries. अच्छा, इसको मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा. इसको अगर आप थोड़ा जूम करके देखें ना, इसमें आपको नजर आएंगी चीजें कि इन ऑपरेशन प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं डैम के लिहाज से. ये हाइड्रो डेवलपमेंट इन पाकिस्तान है, लोकेशन मैप के मुताबिक जो हमारे इन प्रोसेस हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन कौन से, सारे ब्लू वाले हैं और मेजोरिटी ब्लू में ही है. अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अनाउंस करे रखे हैं कि जी ये बन जाएंगे, ये वो वाले हैं. ठीक. और फिजिबिलिटी एंड डिटेल डिजाइन इन हैंड, जिनका डिटेल डिजाइन और जो इन हैंड अभी हाथ में है चल रहे हैं वो ये ब्लैक वाले हैं. और जो प्रोजेक्ट अंडर पीपीआई भी हैं वो आपके यहाँ पे पर्पल से दिखाए गए हैं. तो इन हैंडेड जो है वो आपके ये वाले डैम भी हैं जो कि इन प्रोसेस चल रहे हैं. ये आप सोच रहे होंगे इतने डैम अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते तो हमारी पैदावारी लागत पूरी कर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे इन फंक्शन हो, चल रहे हों. तो ये बहुत ज़रूरी है. और ये इनके लिए फिर फंड्स और वो जो हम वो कर्ज लेके बनाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है. उन सब चीज़ों के मुताबिक तो ही आपका डैम सही तरह से बन सकता है. इन तमाम तर चीज़ों में आप देखें जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये आपकी वो है इंडस रिवर, बहता हुआ पूरा इंडस रिवर है. ये आपका मंगला डैम है. अच्छा, जो ग्रीन से है ये इन ऑपरेशन है, प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी. ये मंगला डैम हो गया आपका 1,000 मेगावाट का. ये चश्मा पावर प्लांट है, ये मैं देख कर भी आया हूँ मियाँ वाली में. और ये वार्सिक डैम है आपका, ये गाजीपुर, उधर डिस्कशन कर ली इस पे हमने. तरबेला डैम दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम. और दगड़ी डैम है एक, और जबन डैम है एक, जागड़न डैम है एक फर्दर. और ग्रीन के फर्दर मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये ओवरऑल आपकी कंट्री में ये डैम इंस्टॉल हुए हुए हैं. पाकिस्तान हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो उनके बारे में बताई गई है
ये फर्दर है कि इंडस रिवर के थ्रू जो पोटेंशियल आप ले सकते हैं अभी भी, जो आपने नहीं लिया वो ये है। और जो नॉर्दर्न NWFP हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान के जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं, उनके जरिए जो आप पोटेंशियल जो उनमें है इंडस रिवर का, उसके जरिए भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इतना पोटेंशियल है। और नीलम झेलम रिवर से तो आप ले ही रहे हैं, कुन्हार नीलम रिवर्स, टर्बरीज एंड पुंछ रिवर, सावात के जरिए से, जो सावात रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज के जरिए वो हम ये ले सकते हैं, चित्राल रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, तो ये हमारे पोटेंशियल वो इलाके हैं जो पोटेंशियल दे सकते हैं हमें। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन चीज़ को देखते हैं। द डैम इज़ द अर्थ फॉल्ट फिल डैम, जो कि हमारा तरबेला डैम है, इंडस रिवर इन पाकिस्तान। इट्स द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम, दुनिया का सबसे बड़ा 5वें नंबर पे अर्थ फिल स्ट्रक्चर और वर्ल्ड वाइज डैम है। 5वें नंबर पे, दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में 5वें नंबर पे आता है हमारा तरबेला डैम, जो कि 3478 मेगावाट का है। तो the dam was completed in 1967 and was designed to store water in Indus River। दरियासन के पानी को स्टोर किया जाता है इसमें। एरीगेशन, जो आपके दरियाई निज़ाम है, फ्लूड कंट्रोल, सैलाब आते हैं वो इससे रुक जाते हैं, सारा पानी सैलाब का आप दरिया में डाल लेंगे, डैम में डाल लेते हैं। एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट भी इससे होती है, तो इस डैम का ये फायदा है। इट्स प्राइमरी यूज इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ, इसकी इतनी है तबला डैम की, द हाइड्रो पावर स्टेशन विल इंक्रीज, और जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसके जरिए से मजीद इसकी इंक्रीज कैपेसिटी, जो कि 6298 मेगावाट तक होगी आफ्टर कंप्लीशन द ऑन गोइंग फोर्थ एक्सटेंशन। फोर्थ नहीं, अब इसकी 5वीं एक्सटेंशन हो चुकी है। एंड द प्लान फिफ्थ एक्सटेंशन, फाइनेंशियल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के कर्ज लेके हम इसकी एक्सटेंशन करेंगे फर्दर। मंगला डैम को अगर आप देखें तो इसका इंडस जो बेसन टेरिटरी है, जो कि 1960 से होकर आ रही है, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर ये दो हैं। तो इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, ये हमारे दरिया होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं पानी। अच्छा, ईस्टर्न रिवर में हम बात करें तो ये रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये भी हमें, ये 6 वो बनते हैं हमारे दरिया। वो पूछते हैं ना बच्चों से, बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं, 6 दरियाओं के नाम बताओ, तो दरिया सिंध है, झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो टोटल 6 दरिया हमारे हैं जिनसे टेरिटरी में पानी पानी आता है। ठीक, तो तरबेला डैम ये से ड्राइव होता है। तरबेला से फिर आपका कतबा, कालाबाग कालाबाग डैम है जी, इसकी डिस्कशन हम ना करें तो बेहतर है। चश्मा बैराज है जी, उसके बाद तुनसा बैराज है, फिर गुड्डू बैराज एट दी एंड में सब आके मिलते हैं उसमें। मंगला डैम है, रसूल ब्रिज है, ट्रिमिक ब्रिज है उससे, और मिराला ब्रिज है जी, कुंडली ब्रिज है, फर्दर ये फिर ज्वाइन होता है इस तरीके से। फिर बहुत सारे मध्यपुर ब्रिज के जरिए इसमें आता है। तो ये इंडिया के जरिए से आ रहे होते हैं वहाँ पे, चाइना और इंडिया के तरफ से। नंगल ब्रिज, हेडिज और इस तरीके से होते हुए इस्लाम ब्रिज, पंजरब ब्रिज, और आखिर में गुड्डू बराज में आके मिलता है। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट, फिर हमने उस इलाके के हिसाब से गुड्डू रखा गया है, फिर वहाँ पे वो भी थर्मल पावर प्लांट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। मंगला डैम के लिहाज से हम बात करें, इस मल्टीपर्पज डैम लोकेटेड ऑन दी झेलम रिवर पर बना हुआ है इन दी मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजाद कश्मीर इन पाकिस्तान। इट इज द 7th लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड। डैम गॉट इट्स नेम फ्रॉम द विलेज ऑफ मंगला, जो कि डिटेल विकिपीडिया में लिखी हुई है। और जो इसकी 10 यूनिट्स हैं 100 मेगावाट की, जो कि हमारा मंगला डैम है। अच्छा जी, उसके बाद ये इनिशियल कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ डैम क्या होती हैं, वो यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ। सो ये स्टडी कंटेंट है, तो इसको जरा तब तक आप रीड करें। मैं अटेंडेंस भी ले लूँ।
सर क्लास एंड हो रही है।